Nitimam eti sorjuna. Kata ya soja. Ngapia ipo no mujene. Sangya mumya i logo dara tabawa ko tishi tudi. Kana ko bo son lo pi do akha. I yo loga kabarin tapan pian yu. Wiwa le mi mahobe. Ngapia i thawara loga to yamau pyu le ni. O Arjuna. Shenija. ဘုရားမြတ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဤလောကုတ္တရာလောကမှာဆင်းသက်ပွင့်တော်မူကြောင်းကိုပါဠိ6တွင်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားရှင်ဤပွင့်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်နိုင်သူသည်လောကီနှောင့်ယှက်မှုမှလွတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လက်ရှိယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွလွတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားမြတ်ဤနိုင်ငံတော်သို့ချက်ချင်းပြန်လည်ရောက်ရှိလေသည်သက်ရှိတို့လောကီနှောင့်ယှက်မှုမှယင်းသို့လွတ်မြောက်ရန်မှာလွယ်ကူသောကိစ္စတစ်ခုလုံးဝမဟုတ်ပေ မာယာဝတိများနှင့်ယောဂီတို့သည်ဘဝပေါင်းများစွာတွင်ဒုက္ခပေါင်းများစွာခံပြီးမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိပေသည်ထို့သောဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းတို့ရရှိသောဘုရားမြတ်၏ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ပရမကျူတိတို့ပိုပေါင်းဝင်ရောက်သွားခြင်းသည်ပြည့်စုံသောလွတ်မြောက်မှုမဟုတ်ပဲရုပ်လောကီလောကအတွင်းသို့ပြန်လည်ကြာရောက်မည့်အန္တရာယ်ရှိနေပေသည်ဘုရားမြတ်ထံယူပါတော်များနှင့်အဝတ္တပေါင်းများများစွာရှိတော်မူကြောင်းကိုအတဝိတံအကျုတံအနာတိ Ananta Rupa ဟူ၍ဗြဟ္မစမိတာကျမ်း533တွင်ဖော်ပြထားသည်ရှင်တော်ဘုရားထံလောကုတ္တရာယူပါတော်ပေါင်းများများစွာရှိတော်မူသောလည်းထိုပွင့်တော်မူသမျှဘုရားအစုစုသည်တစုတည်းသောအမြင့်မြတ်သောဘုရားရှင်ပင်ဖြစ်တော်မူသည်ဤအချက်အားလောကီကပညာရှင်များနှင့်လက်တွေ့သိမှယုံသောတသနိကပညာရှင်များနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်တော့လည်းမိမိတို့အနေနဲ့မူယုံကြည်စွာဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်ဝေရကျမ်းများပုရုရှာ ဘူတိနိဥပနိရှကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ကဲ့သို့တဇူရဲသောဘုရားမြတ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဤစစ်မှန်သောတာဝကများနှင့်အတူမရေမတွက်နိုင်သောလောကုတ္တရာယူပါတော်များဖြင့်အစဉ်မွေးလျော်လျက်ရှိတော်မူ၏ဤဝေရအမည်ကိုဝေရကျမ်းဤယခုပါဠိတွင်ဘုရားမြတ်ကိုယ်တော်တိုင်အတည်ပြုတော်မူသည်ဘုရားမြတ်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်ဝေရကျမ်းတို့ဤသာသနာအာနာပိုင်မှုတို့ကိုအားကိုးပြု၍ဤသစ္စာတရား လက်ခံသူနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှန်းဆ၍အချိန်ဖြုံးတိခြင်းမရှိသူသည်တန်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်း၏အမြင့်ဆုံးမြင့်မြတ်သည့်အစဉ်သို့ရောက်ရှိပေသည်ဤသစ္စာတရားကိုယုံကြည်စွာလက်ခံယုံဖြင့်တန်တရားမှလွတ်မြောက်ကြောင်းယုံမှတန်တရားဖြစ်စေရမလို့ပေဒီနေရာတွင်ဝိရအတွေ့အခေါ်ဖြစ်သောတတ်တောင်းအစီနှင့်အမှန်ပင်ထပ်ထူထပ်များဖြစ်နေ၏ဘုရားမြတ်ကృష్ဏအားအမြင့်မြတ်ဆုံးဟူ၍နားလည်သဘောပေါက်သူအရှင်ဘုရားဒေတာထိုအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားဖြစ်သောဗြဟ္မမဟုတ်ပါဖြစ်တော်မူ၏ဟူ၍ဘုရားမြတ်ထံလျှောက်ထားသူဤသူမဆိုသည်တမဟုတ်ခြင်းလွတ်မြောက်လျက်အကျိုးဆက်ကဘုရားမြတ်၏အနိကအပါတော်မြတ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ခါစားနိုင်ရန်ပြင်ချသွားလေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ဘုရားမြတ်၏သစ္စာရှိသောထိုတာဝကသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေသည်ဤအကြောင်းကိုဝေဒကျမ်းများကလည်းထပ်ဆင့်အတိအကျရရှိ၏မွေးဖွားခြင်းတည်ဆုံးခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းဤပြည့်ပြည့်စုံသောအစဉ်ကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားအားသိရှိယုံများဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်၏ဤပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရှိရန်ထိုမှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ပေဖြေတာဝတ္တရာဥပနိရှသုံးရှစ်ထိုမှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိသူသည်အတိပ္ပယ်မှာဘုရားမြတ်ကృష్ဏအားအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားအဖြစ်မသိရှိသူသည်အဝိဇ္ဇာဖုံးနေသူသာဖြစ်သည်ဥပမာပြုရလျင်ပြားရည်ထဲထားသောပလင်းကိုအပြင်မှရက်နေရုံဖြင့်ပြားရည်ဤအရာတကိုမသိရှိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘဂဝဂီတာကျမ်းကိုလောကီပညာဖြင့်အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုနေုံဖြင့်တန်တရားမှလွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေလက်တွေ့သဒ္ဒနာပညာရှိများသည်ဤယုံလောကကဘာ၌အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲထို့သောဖြစ်ခြင်းကတန်တရားမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရေးချင်းမဟုတ်ပေယင်းသို့မာနထောင်လွှမ်းနေကြသူလောကီပညာရှိများအနေနဲ့ဘုရားမြတ်၏ကာဝကတော်၏အတိုင်းအဆမရှိသောမေတ္တာကိုရရှိရန်စောင့်နေုံသာရှိ၏ထို့ကြောင့်အရှင်သူသည်ကృష్ဏနုတ္တိကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်လျက်အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ကျင့်ကြံရမည်ဖြစ်ပြီးယင်းသို့ကျင့်ကြံမှာအပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရှိဖြစ်ပါသည် सब पढ़ भी जाता समझ जाता समझ गया ठीक है कुछ ट्रांसलेट कर तो हमको पता था ठीक है क्या हिंदी में बोलेगा ना हमेशा समझ तो ये
दिस श्लोक, ये श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है भगवद गीता का। हिंदी से ही कर समझा तो समझते हैं। समझते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारा जन्म नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान है, ये हमारा जन्म है, भगवान बता रहा है। न जायते म्रियते व कदाचित्, न भूत्वा भविता न बभूव अजो नित्य शाश्वत अयम्, मैं अजो, हमारा जन्म नहीं है। क्यों? ये बताता जे कुमारम यौवनम जरा, वो क्या श्लोक है शुरू? देहि नस्मिन् यथा देहि, ये हम सबको ये देव है, इसका एक देव हमारा एक देव सब, इसमें एक देही है, दो शब्द है, एक देहो एक देही। हर आदमी सोचता आप कौन है? हम बर्मीज है, हम इंडियन है, हम आदमी है, हम औरत है, हम मिस्टर जॉन इंग्लिश मैन, इंग्लिश क्रिकेटर, हम साइंटिस्ट, ये सब देह का परिचय है, ये अज्ञान है भगवान का। ज्ञान क्या है ना, हम देही है, जैसा हम एक कपड़ा पहना सब ये ऊपर पहना है, ये जो कुर्ता है, ये कुर्ता हम थोड़ा ही है, कुर्ता नहीं है, कुर्ता का अंदर में जो है वो मैं हूँ। सो देह का अंदर में जो है देही, इसे घर में अंदर में कोई रहता, कोई कहे ये घर में नहीं, एक पोखर में नहीं, एक कमरा में नहीं है, कमरा का अंदर में जो रहता वो मैं हूँ। इस तरह देही नस्मिन्, जब हमें दुनिया में आता एक शरीर लेके आता, तो ये चैतन्य चरित्र कहा रहा ये रूपे ब्रह्मांड भ्रमिति कोनो भाग्यवान। तो गीता में कह रहा आ ब्रह्म भुवनार लोक पुनरावृत्ति न बच्चों, हम घूमते रहता है 84 पद्म पुराण के अनुसार, हमारा कर्म अनुसार हर आदमी तो जो कोई जीव 84 लाख जोनी में घूम रहा, 9 लाख किस्म का जीव शरीर है पानी में, छोटा क्रैब ककड़ा, क्या कहते हैं ककड़ा, ऐसे चलता से तिमी मांस तक है, तिमिंगल है, तिमी को खा लेता, तिमी को बिगल लेता, उसका तो तिमिंगल अभी तक दिखा दिया। तिमी दिखाता 200 फीट, समझ नहीं सकता 80 फीट इतना बड़ा है, उसको गिर लेता, हो नहीं सकता दूसरा ग्रह में है, ये सब चीज है, साइंटिस्ट कह नहीं सकता। हम इतना जोनी से घूम रहा है, घूमते घूमते मनुष्य जन्म मिला, लब्धा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है कि केवल मनुष्य जन्म में जो हम कर रहे हैं इतना, ब्रह्मा से इंद्र, असुर, देवता, भूत प्रेत, राक्षस, दानव, इंद्र गोपो एक कीट है, छोटा कीड़ा होता है, ऐसा हम घूम रहे, सब एक ही है, देह अलग है। जैसा कर्म किया, जैसा संग ऐसा रंग, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा भाव प्रकृति वैसा शरीर। कोई इतना कामुक है, बुरा मत मानना, ये है कलुष है, काम क्रोध लोभ मोह मत मान, इतना कामुक है, भगवान देख रहा, कर्मणा दैव ने देवता लोग सब देख रहा, भगवान परमात्मा देख रहा, तुम ऐसे ही से दुनिया को भोग करने चाहता, तो केंटुकी चिकन जाके चिकन खाने चाहता, मटन खाता तो नहीं जाके क्या Mr. What is that shop's name? KFC. Huh? KFC. नहीं, KFC, ये तो एक है। KFC. KFC है और है मैकडोनल्ड।
एम इधर जरूर होगा है कि नहीं? शहर में जरूर होगा मैकडोनल्ड, हाँ? चाइना में तो है, बर्मा में भी है। हाँ? है। यहाँ मैकडोनल्ड है। अच्छा, चिप्स, किंग बर्गर, लेकिन इसे माना नहीं है, इसको नहीं ऐसा कर दिया कर्म फ्री किंग बर्गर। जैक फ्रूट है, उसका काट के हम उसका कहता कटाल, हिंदी में क्या कहता कटाल, काट के अच्छे तरह जैसा मिन्स मीट ज्यादा मसाला दे के और रोटी का उसके बीच में चीज या पनीर या क्या टमाटर स्लाइस, क्यूकम्बर, खीरा दे दिया, खाना टमाटर सॉस कच्चा कर्म फ्री इस्कॉन, क्या लिखता है गोविंदास। कर्म फ्री क्या है? ये है दूसरा दुकान में खाएगा तो तुम्हारा कर्म फल भोग करना, अगले जीवन में जो बकरी को खाया तो तुमको भी बकरी बनने पड़ेगा, वो भी तुमको खाएगा, जैसा कर्म वैसा फल। ये क्राइस्ट भी कहा एज यू सो सो यू रीच, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन भक्ति के लिए भगवान का भक्त जो है ब्रह्मा जी, जब भगवान को अनुभव किया, महसूस किया, वो जो महसूस किया वो लिखा है ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निदहति, हाँ जितना कर्म किया उसका कर्म फल सब निदहति, सब जला देगा सबको। कैसे? अगर कृष्ण कर्म करे तो ब्रह्म कर्म, भगवान का सुख करे, भक्ति भाव होकर अभी खाओ सब ठीक है, सभी काम कर नहीं सकता, लेकिन भगवान जैसे कहा वैसे करना चाहिए। भगवान को भोग चढ़ा, भगवान क्या खाता? भगवान बोला नहीं पत्रम पुष्पम कोकोकोलम बोला, बोला ऐसा बोला मत, जो बोला हो तो क्या बोला? जग्गाश्लिष्ट शीनो संतु, भगवान को भोग चढ़ाओ, भक्ति भावित करके पकाओ, भोग चढ़ा वो खाओ, खाने से क्या? जग्गाश्लिष्ट शीनो संतु मुंचते सर्वगिर्विशो, जितना पाप किया उसका कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। इसे कहा कर्म फ्री किंग बर्गर। इसको हमारा मिडलटन रोड कलकत्ता में था, वो फ्रेंच, ब्रिटिश, यूके, अमेरिकन कॉन्सुलेट का लड़का लेके आता खाता, अरे बहुत अच्छा है, हाँ तुम खाओ जितना अच्छा तुम पसंद करता, किंग बर्गर ये सभी इसको में मिल जाता। लेकिन एक कर्म फ्री है, इसका मतलब क्या? दूसरा खाएगा तुमको इसका फल मिलेगा। मांस, इसका मतलब संस्कृत के शब्द का अर्थ है वे हमारा मांस खाएगा, जिसको मांस मैं खा रहा हूं, इसका अर्थ है मांस। बहुत तात्पर्य है, बहुत अर्थ है। क्यों कहता मांस? लेकिन आदमी परवाह करता नहीं, वो अज्ञान में है। जैसा पशु है, वो देख रहा उसको लंबा खड़ा है, इसके बाद उसको जवाई कर रहा है कसाई खाना में, उसके बाद उसको जगह तभी वो घास खा रहा है। ये दुनिया का आदमी शायद तमगुण रजगुण में है, इसलिए मोहितम सर्व जगत नाम जनाति, सर्व जगत तीन गुण में मोहित होके भगवान को जाने नहीं सकता। लेकिन भक्त तो भगवान का चरण में शरणागत होने से क्या है? ब्रह्म भूया कल्पते समुदितो हितान, ब्रह्म भूया कल्पते, तीन गुण से मुक्त हो जाता तो भगवान का जो शरण में आ जाता, तो माया उसको जो पकड़ा है उसको छोड़ देता, दुर्गा देवी है। नहीं तो जो असुर है भगवान चरण शरणागत है नहीं है, वो असुर है। भगवान का जो माया देवी है, माँ दुर्गा मैया, देखो असुर को त्रिशूल मार रहा है। इसका मतलब क्या? त्रिशूल, तीन किस्म का क्लेश है, आध्यात्मिक मन में दुख है। हमारा एक लड़का गुजार किया, तो ये राजा का भी हो नहीं सकता है कि नहीं? चित्रकेतु है, एक लड़का हुआ, फिर पहले जो दुख था और दुख हुआ। अंगिरा ऋषि को बोला ठीक है,
लेकिन भगवान जो करते वही मानना अच्छा है, नहीं तो अभी जितना दुख है उससे ज्यादा दुख हो नहीं सकता। ठीक है क्या ठीक है, हम तो लेकर में क्या है। ऐसे इस्कॉन में भी बुरा मत मानना है, वो इस्कॉन भी वैसा होता, कोई शादी किया कोई देखा नहीं। हमको बहुत आदमी का समाज क्या, अरे मान लो वो बात कहा, तो जितना ब्रह्मचारी ऐसा नहीं उसको मान लो तुम्हारा लड़का, ना तुम उसमें खुश नहीं है, तुम्हारा मन जो चाहता है ठीक है, तो भगवान ऐसा कर देगा जो फिर और एक समस्या कर देगा, तुमको देगा और एक समस्या। कोई इंद्र बना, लेकिन गुरु आया उसको ठीक से स्वागत नहीं किया, उनको अभिशाप से शुकर बन गया, शुकर जोनी। ऐसे कोई मगरमच्छ बन गया, कोई नाग बन गया, कोई ज्यादा अच्छा दिमाग नहीं, कोई साधु है उसको स्वागत किया नहीं, तो क्या तुम कैसे आचरण करना है तुम्हें पता नहीं है, बुद्ध का जाओ तुम हाथी बन जाओ। हाथी बन, कोई वृक्ष बन गया, क्यों नंगा, इतना पिया, कोई ज्ञान नहीं है। अभी भी होता है ऐसा, होने सकता अगले जन्म में नंगा जन्म लगे, इसका मतलब पेड़ बन के रहेगा। फिर भगवान का भक्तों का चरण में क्षमा मांगने से वो कृपा कर देता, ठीक है तुमको उद्धार हो जाएगा। ऐसे हम लोग खूब रहा, लेकिन मनुष्य जन्म होने से क्या है, एक सुविधा ही है, बड़ा सुविधा है, लब्धा सुदुर्लभम, ये सुदुर्लभ है 84 लाख जन्म में घूमते घूमते मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जन्म में आप हरिभजन कर नहीं सकता। मनुष्य जन्म में आप भाग्यशाली है, सदगुरु का चरण आश्रय ले लिया, तो उनका तद विधि प्रणिपाते न परिप्रस्त, उनका चरण में आश्रय लेके अगर उनको सेवा करे, उसको सवाल पूछे, वो तो तत्व ज्ञान दे नहीं सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, वो आपको ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता, शरीर छोड़ेगा तब फिर संसार में नहीं आने पड़ेगा। भगवान भगवत धाम जहाँ जसोदा मैया है, नंद बाबा, श्रीराम सुदाम वसुदाम राधा रानी, वहां जाके कुछ ना कुछ उनको असिस्टेंट, अगर कोई इसमें सीरियस है, गंभीरता से चाहता वहां जाने, यहाँ रहने नहीं, तो उसका लिए एक भक्ति है कि भगवान का भक्ता मामो जाने। अगर हम भगवान का शरणागत होके उनका दिव्य नाम रूप गुण लीला कथा भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ये श्रवण करे, श्रवणम कीर्तनम शरणम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति है। ओके, भगवान का चरण में हमारा आसक्ति बढ़ाए, जब दुनिया में वैराग आ जाएगा, भगवान का आसक्ति पूरा हो जाएगा। अगर अपराध नहीं करे, निश्चित एक जिंदगी में भी भगवत प्राप्ति हो नहीं सकता, नहीं तो फिर आने पड़ेगा, फिर भजन करेगा, जब पूरा शुद्ध हो जाए। शुद्ध होने का मतलब क्या, जब भगवान जन्म लिया, भगवान कहा था अजो पिशाम सब प्यार, हमारा जन्म नहीं है, लेकिन आविर्भाव होता है, प्रकट अप्रकट। चैतन्य महाप्रभु ये व्याख्या किया क्या है, इसलिए कहा एवं जो व्यक्ति तत्व, भगवान का जन्म हमारा जन्म एक नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म कहा था कि ना जन्म कर्म चले दीपम, हमारा जन्म दीपम नहीं है, भगवान एक दुनिया का पर है। शंकराचार्य ने कहा नारायण परो व्यक्त,
ये दुनिया का जो कानून है, प्रकृति है, उसका अंदर में भगवान आता नहीं। ऐसा कोई नहीं करने सकता। भगवान जैसा जो शुकर अवतार लिया, मान लो जंगल में शुअर होता, उसका दांत होता ऐसा, वो शेर को साथ सिंह का साथ लड़ाई करता हो, देखिए फाड़ देता है। तो कितना बड़ा था, लेकिन भगवान इतना बड़ा शरीर लिया दिए पृथ्वी को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, शायद हिरण्याक्ष ये पृथ्वी को पाताल में पानी का नीचे ले गया। तो भगवान को प्रार्थना किया सब, तो भगवान शुक्र रूप लेके उस दांत से उसको उठा लिया। देखिए इतने दांत में इस पृथ्वी को उठा लिया। कोई कहेगा ये सब गप है, थोड़ा ये गप है, आप अज्ञान में है, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पीएचडी करके ये समझ नहीं सकते। पीएचडी करने से काम क्रोध मोह से मुक्त तो नहीं होता होगा, नहीं। इसलिए भगवान का आशीर्वाद है। इस बारे में कुछ अच्छा बात भगवान का, जैसे भगवान जब प्रकट हुआ, देवकी वसुदेव का संतान रूप में, पुत्र रूप में, कंस का कारागार में अभी तक है। आप मथुरा में कोई गया देखा कहाँ कारागार था? रात को अष्टम संतान जन्माष्टमी है, अष्टम, उसका पहले संकर्षण है ना। भगवान क्या कहा, जे उनका एक जोग माया को कहा एक करो, हमारा जो अवतार संकर्षण पे आ रहा है उसको उनको देवकी का गर्भ से ट्रांसफर करो, भेज दो रोहिणी का गर्भ। ये कभी हो नहीं सकता, कोई आदमी ऐसा कर, ये किसा है, ये कैसे संभव? ये दुनियादारी है, दुनिया का कानून है, भगवान ही कानून का पर है। इसलिए जोग माया क्या है वो साधारण सामान्य आदमी नहीं समझेगा, लेकिन जो भक्त है उसको लिए जोग माया वो समझ जाता। जब भगवान बोला ठीक है भैया कंस अभी आ जाएगा, हम बच्चा बन जाता, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। हमारा जैसा जन्म ऐसा नहीं है, वो चतुर्भुज रूप में आया, पीत वसान, मोर पूछ, सब कुछ है। ऐसा कुछ जन्म होता है नहीं, वो प्रकट हुआ। जैसे सूर्य उदय होता दिगंत में, पूर्व दिगंत में उदय होता, ऐसा भगवान का प्रकट होना तो है हर समय। ऐसा कोई कर नहीं सकता। 16,000 पत्नी को शादी किया, 16,000 के लिए 16,000 मूर्ति बन गया। कोई टाइम में पत्नी को साथ खेल रहा, कोई टाइम में बच्चा को लेके आदर कर रहा, कोई घर में दूसरा कोई शादी का व्यवस्था कर रहा, बातचीत कर रहा लड़का का लड़की का घर में, कोई जगह में पैलेस में भगवान एक ही साथ सिमल्टेनियसली एक ही समय में है, कोई राजसभा में है, कोई कह नहीं सकता। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है, सभी करने से सर्वशक्तिमान है। कहा जाता भगवान इज ग्रेट, कितना ग्रेट कह नहीं सकते, हम लोग कह नहीं सकता, वैष्णव लोग। भगवान बताया, भगवान का विष्णु महाविष्णु रूप में उसका श्वास से, एक एक श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड आ रहा। जैसा सूरज का भांति आता रश्मि, हाँ आपका कोई घर अंधार है, अब देखिए एक छोटा छिद्र से आ रहा, देखा कितना छोटा 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 छोटा, इस तरह आ रहा, ये कोई कल्पना कर नहीं सकता निश्वास से। भगवान का तो उसका लक्ष्मी है। जैसे कोई आदमी का पत्नी है, दुनिया में कोई बच्चा चाहता, एक पत्नी एक औरत का एक पति चाहिए, एक पति का एक पत्नी चाहिए, दोनों का सहयोग से कोई बच्चा नहीं सकता। भगवान की भी है, लेकिन भगवान का दिव्य है। कैसे भगवान का चाहिए अच्छा एक जन्म देगा, भगवान अपने नाभि से, उनका लक्ष्मी जी है पास में बेटा ना, उसका जरूरत नहीं, नाभि से एक कमल पैदा किया, कमल में प्रकट हो गया ब्रह्मा जी। कोई ऐसा कर नहीं सकता। नहीं, भगवान का तो कल्पना से ही सब होता है। हाँ, तो लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, व्यासदेव भगवान का अवतार है। अवतार हाँ, श्रीमद् भागवतम
महामुने कृते, महामुनि मतलब ये 4 दोष जो कंडीशन सोल है, मायाबद्ध जीव है, ये 4 गलती होता। वो भूल करता, गलती करता, भ्रम प्रमाद, वो मोहित है, भ्रम प्रमाद वो मोहित है, वो गलती करता, वो करता आई थिंक, हमारा विचार ऐसा है, हमको लग रहा है, ये तो निश्चित नहीं है, तो गलती करेगा। और एक है उसका जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय सीमित क्षमता है। हम सूरज को देख रहा, लग रहा तो इतना एक ऐसे क्या चाँद को अभी देगा लगे एक 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 चीज क्या क्या चांदी का प्लेट का माफिक दिखा था, हाँ चमक रहा, लेकिन वो थोड़ा ही है, वो कितना बड़ा है। ऐसा पृथ्वी को दिखाता दूसरा ग्रह से इतना ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कितना बड़ा है। जैसे सूर्य को भी ऐसा दिखाता, हमारा से 14 लाख गुण ना कितना गुण बड़ा है पृथ्वी से, दिखाता ऐसा। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, भगवान है अधोक्षज, ये सबका पर है। समझने के लिए, भगवान समझने के लिए कथा अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय, ये जड़ जो इंद्रिय है भोगोन्मुख, वो कट्टा मानने चाहते हैं जैसे, उसको समझ नहीं सीखा। चाहे वो आप ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट है, नोबेलॉरियट, कुआ में भी होता डॉक्टर फ्रॉग, वो को बोला कोई सागर से आया, बोला सागर कितना बड़ा है, कुआ का तो 3 फीट है, मान लो 4 फीट 6 फीट, नहीं 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 10 फीट 30 फीट मांगे, अच्छा 100 फीट मांगे, ठीक है। अरे ना रे बाबा ना, 1000 फीट नहीं, 10,000 लाख, हम विश्वास करते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा, ये मूर्ख है, उनका परिमाप से इसको विचार कर रहा है। नहीं बाबा, एक चिट्ठी को बोलेगा ये शहर इतना बड़ा है, वो समझेगा है? लेकिन ये सच है, इसलिए कहा जा मनुष्य नाम सहस्त्र, मनुष्य 2 हाथ 2 पांव होने से मनुष्य होता नहीं। 98% एक पशु है, द्विपद पशु, शास्त्र में कहा था, जो जिसका काम है केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, सब 84 लाख जन यही कर रहा है कि नहीं। पुनः पुनः चल रहा, उसके लिए ज्ञान नहीं है। किसके लिए ज्ञान है? ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा किस लिए? जो ब्राह्मण का गुण समझ, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति, जो जान लिया, अनुभव कर लिया, हम शरीर नहीं, हम आदमी नहीं, औरत नहीं, हम चित्ती नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम राक्षस नहीं, देवता नहीं, ब्रह्मा नहीं, हम कृष्ण दास है, कृष्ण सुप्रीम स्पिरिट, परम ब्रह्म, हम ब्रह्म वस्तु है। ये सूरज है कृष्ण जी, हम उसका एक रस्सी का एक कणा है। तो जब शुद्ध अवस्था में हम भगवान का माफी की है क्वालिटेटिवली, गुणगत विचार से, लेकिन परिमाण विचार से हम कुछ नहीं। भगवान विभु अनंत है, हम अनु, ये फर्क है। तो हम इसलिए शुद्ध होना चाहिए। अभी हम तमोगुण रजगुण में है। भगवान इसको क्या कहा देवकी को? मैया देखो कंस आ जाएगा, नहीं आप हमारा याद आए, इसका पीछे 2-3 जन्म में आप बहुत तपस्या किया, आप और वासुदेव। वृक्ष से पत्ता गिर जाता, जब सूख जाता, वो आप खाता था। ऐसे 12,000 देवता का हिसाब से, हमारा दुनिया का संसार के हिसाब से, देवता का हमारा 6 महीना में देवता को आधा दिन होता, 12 घंटा होता। इस तरह ब्रह्मा का आधा दिन होता, 12 घंटा होता। हमारा 4 युग से सत्य त्रेता दापुर कोली, एक युग, एक कोली युग है 4,32,000 ऐसा कुछ। तो ऐसा मान लिया 8 लाख कितना हजार, इसका पीछे वाला युग, उसका वाला 12 लाख कितना, 20 लाख सत्य युग कैसा होगा। तो ये सब कुल योग देके 4 गुणती करे तो 12 घंटा होता ब्रह्मा का एक दिन का, वो डबल 14। तो एक दिन में कृष्ण जी का आविर्भाव होता। तो कितना दिन आप हिसाब कीजिए, हिसाब में आपको दिमाग में आएगा। तो समझना मुश्किल है, एक चिट्ठी का लिए से सब चीज समझना मुश्किल है।
लेकिन भगवान का कृपा से ईश्वरे कृपालय स्वेच्छ जाने जो कि भगवान का थोड़ा कृपा प्राप्त किया भक्ति करके, तो भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान उस पर आपने प्रकट कर दिया, हम ऐसा है, हम ऐसा है, हम ऐसा दिखाया था कि हम हमारा विद्या से बुद्धि से भगवान को समझ लेगा, ये नहीं है। भगवान उसको दिखाता हम ऐसा ऐसा है, तुष्ट होके उसका सेवा में, तो वो जाने से तो भगवान का। इसलिए कहा जन्म कर्म चमे दीपम, तो ऐसा पत्ता खा के तपस्या किया, इसलिए ये कहा मनुष्य जन्म है। भगवान ये शब्द का तपस्या का लिए, ये केवल आहार निद्रा तक कम तुम सुअर गड्ढा कमा भी नहीं, यही सब कर रहा 80% दुनिया का, नहीं 80%, 98%। इसलिए कहा मत तुम हो। इसलिए कोई पूछा प्रभुपाद ये सारा दिन हमको भी जाता है इधर उधर ऑस्ट्रेलिया, अभी इस साल किया नहीं, अभी पूरा हम जाएगा नहीं, देखो पीछे आएगा। तो जाता इसी बीच में देखता गोल्ड कोस्ट, यहाँ भी इंडोनेशिया में भी आता है, कुटा बीच में इधर भी आता, पुकेट पास में ही है, थाईलैंड पुकेट। हाँ पुकेट, what is the other one? If you other Phuket, I think we went ना। अच्छा ये है, वो ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए जब लहरें आता उसमें ये लोग खेलता है, कोई ब्लैक वुड लेके जाता है, सारा दिन यही कर रहा, खेल रहा है उसमें। तो कोई प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये बहुत आनंद मिलता है इसको ये करके, खेल के सारा दिन, खाने का लिए और थोड़ा नींद जाने के लिए बाहर जाता होटल में ऐसे। प्रभुपाद ने कहा मान लो ऐसा कोई जीव है लहरी कसरत करता, हाँ डॉल्फिन है, ओ हो नहीं सकता। भगवान कहा ठीक है, तुम इसे मजाक करने चाहता, अगले जन्म में डॉल्फिन हो जाएगा। महाअध्यक्ष है ना, प्रकृति को कहा दिया महाअध्यक्ष, निर्देश दे दिया, हुकुम दे दिया, ऐसा कुछ शरीर दे दो, हाँ माँ दुर्गा इसको ऐसा शरीर दे जोनी में दे दो, जैसे वो ऐसा मजाक कर नहीं सकता, अगले जन्म में तो डॉल्फिन बन गए। आप लोग भाग्यशाली है, मनुष्य शरीर मिला, हरि कथा सुन रहा, भगवान का नाम कीर्तन कर रहा, इसका फल अलग है। भगवान की आसक्ति बढ़ा, भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये भक्ति है। तो भक्ता माम अभी जाना, भगवान कर रहा, जो भक्ति कर रहा वो मुझे जान नहीं सकता। जन्म कर्म चमे दीपम, ये भक्त जान नहीं सकता। ये सूरज का माफी से उदय होता भगवान का, अब अप्रकट हो जाता, अभी भगवान कृष्ण अप्रकट हो गया, दूसरा एक ग्रह में, दूसरा एक ब्रह्मांड में फिर लीला चल रहा, जन्म लीला ये सब चल रहा। तो अगर हम वो नित्य लीला में जाने चाहता भगवत धाम में, तो अगर भजन करे तो भगवान में आसक्ति बढ़ाते बढ़ाते पूरा आसक्ति हो जाए, अरे जान नहीं सकता जन्म कर्म दिव्यम, थोड़ा सा समझ नहीं सकता, वही काफी है। तो फिर ये संसार 84 लाख जो में घूमने नहीं पड़ेगा भगवान धाम। अगर इधर आसक्ति है तो फिर आगे अगर हरे कृष्ण, फिर ये क्या नाम है सर जगह का, फिर मान ले हमारा लाइफ है, हम बहुत अच्छा लगता है यहाँ, नाइस पैलेस घूमने जाता, नाइस सर है, लेक है, कलकत्ता कितना सुंदर है, वहाँ लंगड़ा मच्छा है, ठीक है खाने के लिए आ जाओ उधर के। लेकिन भजन क्या, फिर भगवान को चढ़ाओ, बहाना दिखाओ, हम देखे तो खाओ। लेकिन आसक्ति जब नहीं रहेगा, भगवान का सेवा में लीन रहेगा, तो भगवान का पास चढ़ाएगा। अगर कोई अपराध ना करे तो ये विचार है, हरे सारे सब बजने वाला है। तो भक्तों के लिए सब कुछ करने के, भक्ति करने से भगवान के पास चढ़ाएगा। अगर यहाँ आसक्ति नहीं है तो, और अपराध नहीं किया तो। महाराज जी ने कहा ना, जिसको वैराग्य उत्पन्न होता है वो भगवान को भक्ति के लिए वो समर्पण हो जाता है। ज्ञान होने से ऐसे ही वैराग्य आ जाता है दुनिया में। इसलिए भगवान कहा ऋषभ देव तपो दिव्यम पुत्र का,
सुअर गधा का माफी, आहार निद्रा तक करके रात दिन मेहनत करना, ये जरूरत नहीं है। ईश्वर गधा का देखो, हाथी, लाखों हाथी है अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जंगल में बहुत हाथी, सिंह, ये सब है। अच्छा, वो 9 से 10 5 बजे तक काम करता है, तो आराम से खाना पीना सब है। देखो कितना खाता, एक नाश्ता करेगा तो 78 पाउंड खा लेता। हम नाश्ता के क्या खाता? अरे माता जी क्या खिलाया? क्या खाया? क्या नहीं वाले वो ढोकला खाया, हाँ? फल खाया, ढोकला खाया, खाता। और हाथी 78 पाउंड खा लेता, उसका नाश्ता है। लेकिन कौन देता? 9 to 5 काम करता, ऑफिस जाता, बास में, यूट्यूब में, ट्यूब में, आदमी औरत ये सब सैंडविच हो जाता। हम देखा लंदन में, चाहे हो कनाडा, टोरंटो हो, न्यूयॉर्क हो, सैंडविच ऑफिस टाइम में आदमी औरत एकदम पैक्ड अप, पता दे रहे ऐसा करता। ये जिंदगी है। हाँ? अब पुष्टते कुछ काम करते नहीं, अच्छा खाता पीता है, उसका की बीमारी होता नहीं, कुछ नहीं। और हम इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या? और बीमारी, और बीमारी। तो इसलिए भगवत का लिव सिंपल लिविंग, आई थिंक सिंपल में शरीर का रक्षा कर लिए, जो तक खाना जरूरत है प्रसाद खाओ, जो भगवान बोला, फूल फल सब्जी अनाज, ग्रेन, शरीर ठीक है। और भजन करो बाकी समय, कोई छोड़ने का जरूरत नहीं। घर संसार सबको भक्त बना दो। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन बनाया। हर रोज मंगल आरती करो घर में, चाहे घर से मंदिर में जाने से तो वो भी ठीक है, नहीं जाने से तो घर में करो। हरि नाम करो, सबको लेके ताली देके शाम को सुबह को हरे कृष्ण, थोड़ा गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ो, ये चर्चा करो, हाँ? बाकी प्रसाद लो। हर कुछ सेवा करने सकता, भगवान का प्रचार करिए, दूसरा को भगवान का चरण में ले आ नहीं सकता, बता के प्रसाद खिला के। हम कहते हैं इसको में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों वाला विदेश में प्रसाद खा के, वो पद के इतना बढ़िया प्रसाद, अधुआ पूरी खा के सब हरि नाम कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और हमारा तो ये संस्कृति है, हम कितना बात करेंगे, आपको सब पता ही है ये सब चीज। थोड़ा शास्त्र भगवान जो बोला वही हम चर्चा कर रहा है यहाँ थोड़ा। तो भगवान बोला अंत काले चममेव, अभी हर रोज ऐसा करे तो अंतिम समय आ जाएगा, हरे कृष्ण बोल के भगवान का पास चला जाए, है कि नहीं? अगर आसक्ति है फिर आने, फिर हमारा हरे कृष्ण, सीताराम सीताराम हरे कृष्ण। अगर ज्ञान होगा तो वैराग्य ऐसे ही आ जाता जगत शरीर संसार में। आसक्ति होना चाहिए कृष्णा कि कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, पूरा कृष्ण कॉन्शियस। हाँ। देखिए चैतन्य महाप्रभु एक बार चतुर्मास का टाइम में साउथ इंडिया गया, श्रीरंगम में। अभी जाने से साउथ इंडिया में बड़ा बड़ा मंदिर है और 3 महीने सब तो वो सब तोड़ दिया मुस्लिम आके, लेकिन साउथ इंडिया एक एक पूरा करने कितना सोच साल चला जाता, इतना बड़ा बड़ा मंदिर है। जैसे कि फोर्ट का मार्ग, उसको तोड़ना इतना आसानी नहीं, कुछ कुछ तोड़ा जितना करने से मुस्लिम लोग अभी तक है। वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। तो ऊपर क्या वो वहाँ महाप्रभु का क्या नाम वाला है, रामानुजाचार्य का बहुत लीला है, तो बोल रहे हैं कांचीपुरम है। तो वहाँ जब गया चतुर्मास का टाइम में, जो टाइम में सन्यासी घूमता नहीं कि वर्षा का टाइम में, तो एक जगह में रहता। सन्यासी तो एक जगह में 2-3 दिन ज़्यादा टाइम रहता है, तो क्या आसक्ति आता था। तो इसलिए महाप्रभु वहाँ 1-4 महीना था। कोई कौन भट्टो का घर, वेंकट भट्ट उनका रेट था, पसंद करते, उसे बातचीत करते। तो वह एक दिन देखा एक ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मण है, क्या नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बहुत कट्टर ब्राह्मण होता, हाँ, जात विचार बहुत है अभी तक। तो वो क्या किया, देखा कि बहुत ब्राह्मण लोग गीता पढ़ रहा, तो गीता पढ़ने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। उसका संस्कृत ज्ञान नहीं था एक ब्राह्मण का,
ये लीला ऐसे ही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सब चैतन्य देख रहा, किसी ऐसा कोई भाव विभोर होके उसका आँख से आनंद में दिव्य आनंद अनुभव होता, महसूस होता, ऐसे आँख से आंसू निकालता। तो जाके पूछा तुम क्या पढ़ रहा ये गीता? लेकिन वो कह रहा हम गीता महाराज हमारा कोई संस्कृत ज्ञान नहीं है। तो ये लोग मजाक करके कहते अरे क्या पढ़ रहा तुम, मजाक कर रहा, उसको पता है हमें संस्कृत आता नहीं है, उसको पंडित है वो सब। लेकिन स्कॉलरशिप से भगवान को जाना नहीं जाता, प्रेम से जाना जाता। भक्ति का अर्थ है अल्टीमेटली प्रेम। हाँ, भगवान में आसक्ति बढ़ा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अब लग रहा आपको बहुत आनंद मिल रहा, जिसे आनंद में आपको आंसू निकालता। तो कहा महाप्रभु ऐसा हुआ कि वो लोग हमको देख के हंसता, लेकिन हमारे गुरु का हर रोज गीता पढ़ो, लेकिन हमारा तो संस्कृत ज्ञान नहीं, गुरु का आदेश मानना चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ने के लिए जब कोशिश करता खुलता पता ऐसा, तो हमको लगता जब भी खुलता हमको लग रहा हमारा मन का पर्दा में एक प्रकट हो जाता एक पिक्चर। वो क्या है ना, भगवान साक्षात अर्जुन जो भगवान का मित्र है लेकिन जीव रूप में सभी भगवान का दास है। और भगवान को ना कह रहा हे कृष्ण तुम ये जो दो विरोधी पार्टी है, हाँ लड़ाई करने के लिए खड़ा हो गया, इतना बड़ा कोई सेना बाहिनी, उसका बीच में हमको ले जा नहीं सकता हमारा रथ को। और भगवान सबका प्रभु है, श्री जगत का प्रभु है, और वो क्या क्या नहीं इतना महान है, उनका दास का सेवा कर रहा, दास का रथ को ले जा रहा। ये देख के हमको इतना आनंद हो रहा, भगवान कितना महान है, याद आ जाता वो फोटो। तो प्रभु चैतन्य महापुरुष को उसको आलिंगन करके कहा तुम असली भगवद गीता का पाठक है, क्योंकि जो पढ़ने से याद आ जाता भगवान का ये चीज है। जैसे एक फूल देखेगा आपको याद आ जाएगा जिसमें आपका प्रेम है कि नहीं? ये फूल हम उनको देगा, हाँ एक कपड़ा हम कृष्ण के लिए एक ड्रेस बनाएगा, ऐसा अच्छा कपड़ा है पुष्पा भगवान कृष्ण जैसा पीत वसन पड़ता नहीं, ये ले जाएगा भगवान के। तो ये जब याद आ जाता है भगवान का जो शतक, कौन याद आ जाता? जहाँ प्रीति है, जहाँ श्रुति, प्रीति या श्रुति संबंध है, देखने से वहाँ उसका प्रीति है तो श्रुति आ जाता, शरण आ जाता, उसका मन में आपका मन में उसका फोटो आ जाता, जो कुछ देखता। तो ये है भक्ति है। इसलिए भगवान का ठीक है तुम्हारा भक्ति है, तुम भगवत पाते, तुम्हारा सफल है भगवत गीता पढ़ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश लोग भी बोलता है ना, लव इज गॉड, प्रेम से ही भगवान को पा सकता है। प्रेम से ही भगवान, ये भक्ति प्रेम का और एक नाम है जना। सरेंडर एंड साथ गॉड विथ लव। कोई सवाल है पूछने से अगर हमारा पता है गुरु से सीखा तो बताओ, नहीं पता है तो हम लोग अभी अहोभाग्य, हम लोग